السلام علیکم، آج 9 بجے میں خوش آمدید، میں ہوں عمران سلطان اور میں ہوں کرن رسلی۔ بلیٹن کا آغاز کرتے ہیں اور سب سے پہلے بات کرتے ہیں وزیر اطلاعات فواد چودھری کی، جنہوں نے عدالتی نظام پر سوال اٹھا دیا۔ کہا لوگ پاکستان کے بجائے بیرون ملک کیس فائل کرتے ہیں، 950 کیسز میں اسٹے آرڈر ہے۔ 300 ارب روپے کا معاملہ ہے جس پر بحرانی کیفیت ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ سپریم کورٹ اور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس صاحبان کے سامنے یہ معاملہ رکھیں گے۔ لوگ جو تھوڑا بہت بھی افورڈ کر سکتے ہیں وہ پاکستان میں کیس فائل نہیں کر رہے ہیں، وہ لنڈن جا کے کیسز فائل کر رہے ہیں۔ اس سے آپ اندازہ لگا لیں کہ ہمارے قوانین کے اوپر، ہمارے عدالتی نظام کے اوپر کس قدر لوگ جو ہیں ان کا اعتماد مجروح ہو چکا ہے۔ اور پاکستان میں جو شریف لوگ ہیں وہ تو بالکل ایک سمجھے کہ ان لوگوں کے ہاتھوں بے بس ہے۔ اور صرف یہ معاملہ انڈیویجولز کا نہیں ہے، یہ معاملہ اداروں کا ہے، پاکستان کی سیکورٹی کا ہے۔ 950 اسٹے آرڈرز ہیں، 3 ٹریلین روپیز کے ایف بی آر ہی کے خالی، اور یہ 3000 ارب روپیہ ہے جو ہائی کورٹس کے یا عدالتوں کے فیصلوں کی وجہ سے، اسٹے آرڈرز کی وجہ سے ایف بی آر کلیکٹ نہیں کر پا رہا۔ اور یہ اتنی بڑی رقم ہے کہ جس سے ایک بالکل آپ سمجھیے کہ ایک انتظامی بحران پیدا ہو چکا ہے۔ لا منسٹر اور اٹارنی جنرل سے یہ کہا گیا ہے کہ وہ چیف جسٹس پاکستان کے ساتھ اور جو ہائی کورٹ کے چیف جسٹسز ہیں ان کے ساتھ یہ معاملہ جو ہے وہ اٹھائیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کے لیے الگ عدالتی نظام ہوگا، وفاقی کابینہ نے منظوری دے دی۔ فواد چودھری کہتے ہیں اوورسیز پاکستانیوں کے مسائل سمری ٹرائل کے اوپر سنے جائیں گے۔ اوورسیز پاکستانیز جو کہ پی ٹی آئی کی ایک بہت اہم سپورٹ بیس ہے، اور ہم نے اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سیپریٹ عدالتی نظام وضع کرنے جو ہے اس کی منظوری دی ہے۔ اس نظام کے تحت جو اوورسیز پاکستانیز کے مقدمات ہیں وہ سمری ٹرائل کے طور کے اوپر جو ہے وہ سنے جائیں گے۔ اور اسلام آباد کا جو ایکٹ ہے وہ آج کابینہ نے بنا کے بھیج دیا ہے سی سی آئی کو، جہاں جہاں پہ پی ٹی آئی کی گورنمنٹس ہیں۔ اسی کو ہم کشمیر اور گلگت بلتستان میں بھی کریں گے۔ وہاں پہ اوورسیز پاکستانیز کے لیے ایک سیپریٹ عدالتیں جو ہیں وہ ہوں گی۔ جوڈیشری جو ہے وہ اگر دیکھے تو اس طرح کے مقدمات جو ہیں وہ ہر شہری ہی کا حق ہے کہ وہ جلدی ہوں۔ وزیر اعظم کی ٹیکس نہ دینے والوں کو آخری وارننگ۔ کہا کچھ لوگ مہنگی گاڑیاں رکھتے ہیں، اچھا لائف سٹائل گزارتے ہیں، لیکن ٹیکس 1 روپیہ نہیں دیتے۔ ایف بی آر میں ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں، جلد ان لوگوں تک پہنچ جائیں گے۔ 22 کروڑ میں سے صرف 20 لاکھ افراد ٹیکس دیتے ہیں۔ اس سے بہت زیادہ لوگ ہیں جو بڑے اچھے لائف سٹائل گزار رہے ہیں اور زیرو ٹیکس دیتے ہیں۔ تو یہ ہم ٹیکنالوجی کے ذریعے اب ان کی طرف پہنچ رہے ہیں۔ میں ابھی بھی ان کو خبردار کر رہا ہوں کہ ہم آپ کے پاس پہنچنے والے ہیں، کیونکہ ہمارے پاس ڈیٹا بڑی تیزی سے آ رہا ہے ان لوگوں کا۔ جو ہمارا ایف بی آر ہے اس کے اندر بھی اب ہم پوری ٹیکنالوجی کا استعمال کر رہے ہیں۔ 22.5 کروڑ لوگوں میں 20 لاکھ لوگ ٹیکس دیتے ہیں۔ یاد رکھیں یہ کووڈ کا دور ہے جب دنیا کے اندر، ہر دنیا میں امیر ترین ملکوں میں بھی غربت بڑھی ہے، یعنی جو غریب، جو نچلا طبقہ ہے وہ پسا ہے اس میں۔ تو ابھی بھی جو ورلڈ بینک کی رپورٹ ہے پاکستان میں غربت کم ہوئی ہے، تھوڑی سی ہے لیکن ہوئی کم ہے۔ تو یہ بھی میں کامیابی سمجھتا ہوں۔ وزیر خزانہ شوکت ترین نے متوسط طبقے کے لیے پروگرام لانے کا اعلان کر دیا۔ کہتے ہیں عمران خان چند روز میں پروگرام کا اعلان کریں گے۔ اسٹیٹ بینک حکومت کی ترجیحات پر کام کر رہا ہے، راست سے ملک کی بچت کی شرح میں اضافہ ہوگا۔ پرائم منسٹر اور انیشیٹو اناؤنس کرنے والے ہیں اگلے 5-10 دن میں، ٹو ہیلپ دی لوور مڈل کلاس، دی سیلریڈ کلاس اینڈ مڈل کلاس، جو کہ اس وقت انفلیشن جن پہ ہو رہا ہے تو اس کے بیچ میں بھی یہ بہت کام آئیں گے۔ تو I want to salute you, Governor Saab, and I want to salute State Bank of Pakistan. اور ماشاءاللہ آپ وہ چیزیں کر رہے ہیں جو پاکستان کی حکومت کی ایک قسم سے انیشیٹوز ہیں، ترجیحات ہیں۔ جب یہ آپ ایفیشنسی لے کے آئیں گے اس سسٹم میں تو اس سے سیونگ ریٹ بڑھے گا ہمارا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں راست ڈیجیٹل ادائیگیوں میں انقلاب برپا کر دے گا۔ گزشتہ سال 500 ارب ڈالر کی ای بینکنگ ٹرانزیکشنز ہوئیں، جی ڈی پی سے بھی زیادہ ٹرانزیکشنز ہوئیں۔ ایسا جدید نظام اب تک امریکہ میں بھی نہیں آیا۔ ملک میں پہلی بار 5 ڈیجیٹل بینکس آنے والے ہیں۔ اب عوام گھر بیٹھے بیٹھے اکاؤنٹ کھول سکتے ہیں، موبائل سے ہی بائیو میٹرک تصدیق ہو جائے گی۔
प्राइम साहब, आपकी विजन, माली शमूलियत की विजन के तहत स्टेट बैंक एक नया इनिशिएटिव लॉन्च कर रहा है जिसका नाम है रास्त फर्द ता फर्द अदायगी। ये हमारे मुल्क में माली शमूलियत के लिए एक नई रेवोल्यूशन लाएगा और ये आसान करेगा लोगों के लिए एक दूसरे से अदायगी करना। रास्त बिल्कुल मुफ्त है। पिछले माली साल में 500 अरब डॉलर की ई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं। हमारा जीडीपी जो है वो 370 बिलियन डॉलर, तो यानी कि उससे कहीं ज्यादा हमारी ई बैंकिंग ट्रांजैक्शंस हुई हैं। अभी तक ये इस तरह अमेरिका में भी नहीं आया जिस तरह अब ये पाकिस्तान में शुरू हो गया है। पाकिस्तान में प्राइम साहब पहली दफा आपकी लीडरशिप के तहत डिजिटल बैंक्स आएंगे जो कि आम आदमी को ज्यादा केटर करेंगे। अपने घर में बैठ के आप उस बैंक की ऐप के जरिए अपने डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड कर सकते हैं, अपना बायोमेट्रिक भी कर सकते हैं, अपना अकाउंट भी खोल सकते हैं। आगे बढ़ते हैं और आपको बताएं, पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी बेनजीराबाद की तालिबा परवीन रिंद इंसाफ के लिए सिंध हाई कोर्ट पहुंच गईं। अदालत ने 15 रोज में तालिबा को हिरासा करने और तशद्दुद के वाकयात की तहकीकात मुकम्मल करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म दे दिया। परवीन रिंद इंसाफ के लिए नंगे पांव अदालत पहुंच गई। चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट ने 15 रोज में वाकये की तहकीकात करके रिपोर्ट जमा करने का हुक्म दे दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि मुलजिम की जमानत मंसूख हुई तो इसे गिरफ्तार किया जाएगा। अगर दीगर लोग भी मुलविस हैं तो बताया जाए। अदालत में पेशी के बाद परवीन रिंद ने सहाफियों से गुफ्तगू में कहा कि इन्हें जान से मारने की धमकियां दी जा रही हैं। हाउस जॉब को 1 माह हुआ है, हाउस जॉब किसी और शहर मुंतकिल की जाए। ये 9 फरवरी का वाकया था, सुबह 9 बजे का, लेकिन अभी तक जो जवाबदार है वो गिरफ्तार नहीं हुए। मैंने 4 जो मुल्जिमान हैं उनके नाम नॉमिनेट किए हैं, FIR की है, लेकिन अभी तक जो एक भी मुल्जिमान है वो गिरफ्तार नहीं हुआ। उनको सपोर्ट दी जा रही है, स्पेस दिया जा रहा है और उनको गिरफ्तार नहीं किया गया। DIG शहीद बेनजीराबाद ने बताया कि नामजद मुलजिम मुस्तफा राजपूत ने सिंध हाई कोर्ट से हिफाजती जमानत करवा ली है। डिप्टी कमिश्नर बेनजीराबाद अदालत में पेश नहीं हुए, जबकि DIG SSP और रजिस्ट्रार पीपल्स मेडिकल यूनिवर्सिटी पेश हुए। सिंध की जामियात में तालिबात के साथ बदसलूकी के मुतालिक अपोजिशन की करारदाद पर आज भी बहस नहीं हो सकी, जिसके खिलाफ अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख वज़ीर आला हाउस पहुंचे और दरवाजे पर अपने खुला खत चिस्मा कर दिया। कामरान शेख मजीद बताएंगे। सिंध असेंबली का इजलास खत्म होते ही तहरीक इंसाफ के अरकान ने वजीर आला हाउस का रुख किया। पुलिस ने PIDC चौक पर कंटेनर और खारदार तारें लगाकर अपोजिशन अरकान को रोकने की कोशिश की। ताहम अरकान पुलिस का घेराव तोड़कर वजीर आला हाउस के मरकजी दरवाजे पर पहुंच गए। एक नारा हुआ करता था, लाठी गोली की सरकार नहीं चलेगी। हम समझते थे कि ये कोई नारा है, उसकी हकीकत का रंग धार चुका है ये CM हाउस और ये सिंध हुकूमत। हमारे सिंध में जो बच्चियों से ज्यादती के वाकयात हो रहे हैं, बच्चियों से हैरेसमेंट के वाकयात हो रहे हैं, परवीन रिंद कह रही है उसके साथ हैरेसमेंट हुई। हम चाह रहे थे उस पर डिस्कशन हो, उनके खिलाफ कार्रवाई हो। इन्होंने स्पीकर को डिक्टेट करके नहीं होने। तहरीक इंसाफ के रहनुमा खुर्रम शेर जमान ने कहा, अगर असेंबली में हमारा माइक बंद किया गया तो रोजाना यहाँ एहतजाज करेंगे। चीफ मिनिस्टर इस वजीर आला, इस नलाई के आला के दरवाजे के आगे अब साबित हुआ इसलिए खड़े हुए हैं कि ये जिम्मेदार है, ये होम मिनिस्टर है, इसके साए तले ये सारे कत्ल हो रहे हैं, ये बैठकर चीफ मिनिस्टर हाउस में तमाशा देख रहा है। तहरीक इंसाफ के अरकान 1 घंटे तक एहतजाज के बाद CM हाउस से रवाना हो गए। कामरान शेख, आज न्यूज, कराची। कराची की मुकामी अदालत में दुआ मंगी अगवा केस के कैदी के फरार केस की समाअत हुई। पुलिस ने ASI खालिद हुसैन को गिरफ्तार करके अदालत में पेश किया। तफ्तीशी अफसर ने बताया कि मुलजिम की हिदायत पर हेड कांस्टेबल नवीद और हबीब जफर मफरूर को लेकर बाहर जाते थे। मुलजिम खालिद हुसैन खुद को बचाने के लिए मुद्दई बन गया। दौरान तफ्तीश मुलजिम ने एतराफ जुर्म भी कर लिया। अदालत ने मुलजिम खालिद का 2 रोजा जिस्मानी रिमांड दे दिया। मीरपुर खास के इलाके नौकोट में खवातीन के अगवा ज्यादती के केस की रिपोर्ट पुलिस ने सिंध हाई कोर्ट में जमा करा दी। बताया गया कि केस में नामजद तमाम 20 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए गए हैं। केस का बरवक्त चालान जमा कराएंगे। समाअत के दौरान DIG मीरपुर खास, SSP और दीगर पुलिस अफसरान चीफ जस्टिस सिंध हाई कोर्ट के चेंबर में पेश हुए।
खानेवाल में ज़हनी माजूर शख्स के कत्ल में मुलव्विस 31 मुल्जिमान को अदालत में पेश कर दिया गया। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत मुल्तान ने मुल्जिमान को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया है। खानेवाल में ज़हनी माजूर शख्स के कत्ल में मुलव्विस मुल्जिमान की गिरफ्तारियों का अमल जारी है। पुलिस ने फुटेजेस की मदद से शनाख्त के बाद मजीद 10 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद गिरफ्तार अफराद की तादाद 31 हो गई। पुलिस की जानिब से 112 मुश्तबा अफराद को हिरासत में भी लिया गया है, जिनसे तफ्तीश जारी है। अहले इलाका का कहना है कि वाक़े में मुलव्विस अफराद को सख्त सजा दी जाए ताकि आइंदा इस किस्म के वाक़यात रुनमा न हो सकें। शरपसंद नासर को कानून के कटहरे में लाके करार वाक़ई सजा दी जाए ताकि आने वाले वक्त में ऐसा कोई सान्या रुनमा न हो। नन्ना कम से कम 10-15 साल से ज़हनी तौर पर एबनॉर्मल था। का फौरी नोट से लेकर जो पकड़े गए हैं, जो इस यानी कि वाक़े में मुलव्वस हैं, उनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए ताकि दोबारा ऐसा कोई वाक़या रुनमा न। गिरफ्तार मुल्जिमान को मुल्तान की इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में पेश किया गया, जहां पुलिस की जानिब से मुल्जिमान के जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की गई। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए 31 मुल्जिमान को 15 रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले कर दिया। वजीराबाद में 2 खवातीन और 2 बच्चों को कत्ल कर दिया गया। मरने वाली खवातीन की उम्र 60 साल और 45 साल है, जबकि बच्चों की उम्र 6 साल और 4 साल है। वाकया रात गए गांव कलीर ऊंचा में पेश आया। सुबह इत्तला मिलने पर पुलिस ने लाशों को पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल मुंतकिल किया। इलाका मकीनों के मुताबिक कत्ल सवर शाह ने किया, जो घर दामाद था और वो अपनी सास का मकान बेचना चाहता था। इसी मामले पर तैश में आकर उसने अपनी बीवी, 2 बच्चों और सास को कत्ल किया और फरार हो गया। ताहम सवर शाह घर पहुंच गया और वाक़े से लाइल्मी का इजहार किया। पुलिस के मुताबिक कत्ल मुलव्विस मुल्जिम को जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। एबटाबाद में ज़हनी मरीजा ने अपने बच्चों पर टोके से हमला कर दिया। टोके के वार से 3 साल की ऐशाल जाँ बहक हो गई, जबकि 8 साल की जोहरा और 1.5 साल का हुसैन शदीद जख्मी हो गया। खातून ने खुद को भी शदीद जख्मी कर लिया। वाक़या एबटाबाद के थाना नाड़ा की हुदूद में पेश आया। मुल्जिमा और जख्मी बच्चों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया, जहां तीनों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। पुलिस ने बच्चों के दादा की मुद्दत में मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी है। पेशावर में खातून के सर में कील ठोकने के वाक़े से मुताल्लिक इब्तिदाई मेडिकल रिपोर्ट आज न्यूज़ ने हासिल कर ली। 2 सफ़ाहत पर मुश्तमिल रिपोर्ट के मुताबिक खातून बाज़ गला ज़हनी दबाव का शिकार है। उसे लुमोट, तवानाई और नींद की कमी का मसला है, जबकि जिंदगी में अदम दिलचस्पी की कैफियत का भी सामना है। खातून 3 साल से रात को ज़हनी दबाव से बचने की अद्वियात ले रही है। डॉक्टर ने खातून की काउंसलिंग और साइकोथेरेपी की और डिप्रेशन की अद्वियात भी तजवीज़ की हैं। आपको बताएं कि लाहौर से 7 माह कबल अगवा होने वाली लड़की बलूचिस्तान से बाजियाब करवा ली गई। मुल्जिमान ने लड़की को नौकरी का झांसा देकर अगवा के बाद फरोख्त कर दिया था। लाहौर पुलिस के मुताबिक 7 माह कबल फैक्ट्री एरिया की रिहायशी 19 साल दिया को मुल्जिमान नौकरी का झांसा देकर कराची ले गए। मुल्जिमान फैसल और इत्तफाक भट्ट ने मामूली रकम की खातिर लड़की को कराची से बलूचिस्तान झलमक्सी के कबायली सरदारों को फरोख्त कर दिया था। यह बच्ची थी 7 माह पहले अगवा हुई थी। उनको ये कहते थे कि हम कराची में आपको नौकरियां जो हैं वो दिलवा देंगे, तो ये उनको लेके बलूचिस्तान में या सिंध में इसको फरोख्त करने का काम करते हैं। पुलिस हुकाम के मुताबिक गिरफ्तार दोनों मुल्जिमान अगवा के बाद फरोख्त, कत्ल और चोरी समेत संगीन वारदातों में मुलव्विस और इश्तिहारी हैं। मुल्जिमान के खिलाफ मजीद कानूनी कार्रवाई का आगाज कर दिया गया है। FIA ने वज़ीर-ए-आज़म के खिलाफ सोशल मीडिया पर नाज़ेबा ट्रेंड बनाने वाले साबिर हाशमी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके उसे जेल भिजवा दिया। लाहौर से गजनफर खान की रिपोर्ट देखते हैं। ट्विटर पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के खिलाफ नाज़ेबा ट्रेंड बनाने वाले के खिलाफ FIA का एक्शन। साइबर क्राइम विंग ने सोशल मीडिया एक्टिविस्ट साबिर हाशमी को मॉडल टाउन से गिरफ्तार करके मुकदमा दर्ज कर दिया। सोशल एक्टिविस्ट की गिरफ्तारी पर शहरियों ने मिले जुले रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। इस तरह के नाज़ेबा अल्फाज तो किसी के बारे में नहीं बोलना चाहिए। बीइंग ए मुस्लिम अगर किसी के से तनकीद है तो वो आप जरूर बोलो। अगर उसने तनकीद की है तो उनको इतना बड़ा एक्शन नहीं लेना चाहिए था उसके खिलाफ कि उसको गिरफ्तार कर लें। वैसे उसको वार्निंग दे के छोड़ देना चाहिए था। हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके साथ नाज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, तनकीद करनी चाहिए बंदे को। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने अपने ट्वीट में कहा कि साबिर हाशमी का दिन दिहाड़े अगवा हुकूमत की बदहवासी की गवाही है। क्या इमरान खान की लूटमार और नाकामियों पर तनकीद नहीं की जा सकती? FIA अदालत ने मुल्जिम को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया है। गजनफर खान, आज न्यूज़, लाहौर।
अहम खबर शामिल करेंगे। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद कर दी। जराये के मुताबिक वजीर आजम ने ओगरा को हिदायत की कि समरी पर नजर सानी की जाए। मजीद तफसीलात जानेंगे अपने नुमाइंदे यासिर नजर से। जी यासिर नजर, अपडेट कीजिएगा। जी बिल्कुल, पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्योंकि आलमी मार्केट में मुसलसल इजाफा हो रहा है, तो ओगरा की तरफ से जो समरी भेजी गई थी तकरीबन 12 से 13 रुपए तक जो मुख्तलिफ पेट्रोलियम मसनूआत है उसमें इजाफे के हवाले से, तो अब ये कहा गया है वज़ीर आज़म की तरफ से कि अब जो समरी है, नजरसानी शुदा समरी जो है वो भिजवाई जाए। इसी हवाले से अब जो समरी दोबारा जाएगी। और वज़ीर खजाना से कुछ देर पहले हमारी बात हुई है, तो उन्होंने भी यही कहा कि ये अब सारा मामला प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में है और उन्होंने आज फैसला करना है और आज रात तक ये फैसला हो जाएगा कि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में क्या रद्द-बदल होना है। तो फिलहाल जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें जो आलमी मार्केट से मुआवजा करने के बाद ओगरा ने जो समरी भिजवाई थी, अब दोबारा उसे वापस भिजवा के अब नजरसानी शुदा जो समरी है वो भिजवाने का कहा गया है। तो अब देखना ही होगा कि प्राइम मिनिस्टर ऑफिस इस हवाले से क्या फैसला करता है और कितना इजाफा जो पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में किया जाता है। वजीर आजम ने पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे की समरी मुस्तरद करते हुए ओगरा को समरी पर नजर सानी की हिदायत की है। हमें अपडेट कर रहे थे यासिर नजर, आपका बहुत शुक्रिया। फवाद चौधरी कहते हैं आलमी मंडी में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बढ़ेंगी तो यहाँ भी कीमतें बढ़ेंगी। कीमतों को ज्यादा देर तक बढ़ने से रोकना हमारे लिए मुमकिन नहीं। देखिए, तेल हमारे यहाँ तो जाहिर है हम तो नहीं, हमारे यहाँ प्रोड्यूस तो नहीं होता, ये तो दुनिया में प्रोड्यूस हो रहा है। इस वक्त जो हालात चल रहे हैं यूक्रेन में, और दुनिया आप देखें किस तरह से एक दूसरे के हालात को मुतासर करती है कि यूक्रेन के और जो इस वक्त यूरोप में और जो टेंशन बनी हुई है अमेरिका में, उसकी वजह से जो इंटरनेशनल प्राइस है आपकी तेल की वो शूट अप हो गई है। अब उसमें हम कितनी देर जो है वो रोक सकते हैं? हमारे यहाँ तो बिलियंस ऑफ रुपीज हमारे पास तो है नहीं जो कि हम जो है रोजाना इसमें दे सकें। तो जाहिर है कीमतें बढ़ेंगी, इसमें कोई शुबा नहीं। वजीर दिफा परवेज खटक कहते हैं कि आलमी सतह पर महंगाई है। इमरान खान पर तनकीद करने वाले हल बताएं। प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि अगर हम महंगाई पर काबू नहीं पा सके तो अपोजिशन हमें मुतबादिल रास्ता बता देती। वज़ीर दिफा का कहना था कि दिफा की वजारत की बातें खुफिया हैं, जिसकी वजह से उसे वजारतों की कारकर्दगी की दौड़ में शामिल ना करें। हमारा इदारा हमेशा स्टेट के साथ होता है। दिफा की वजारत का कोई मुकाबला कर ही नहीं सकता। वजारत दिफा में बहुत डिसिप्लिन है। सारी दुनिया में महंगाई है, सारी दुनिया में हमारे से 2-3 गुना ज्यादा महंगाई है। अगर इमरान खान को कोई नाअहल कहता है तो क्या अमेरिका का सदर नाअहल है? शोर महंगाई का, नाअहली का, तो कम से कम ये जब आदमी किसी के खिलाफ कोई बात करता है तो उसको फिर दूसरा रास्ता बताना चाहिए। तो मैं तो अपोजिशन के सब लीडर से कई दफा बहस भी हुई कि भाई मुझे बताओ कौन सी गलती है, आप वो रास्ता बता दो, हम उस पर चल पड़ेंगे। हम अपने प्राइम मिनिस्टर को समझा देंगे कि ये महंगाई इस तरह रुक सकती है, लेकिन किसी के पास इसका जवाब नहीं है। बहुत ऐसी चीजें जो सीक्रेट है, तो उस वजह से डिफेंस को हमने सिर्फ 3-4 चीजें थी वो जो डेवलपमेंट की थी वो हमने उसको अदर पूरा किया, लेकिन बाकी डिटेल आपको पता है डिफेंस की हर चीज तो मैदान में नहीं आ सकती। तो मेरे ख्याल में डिफेंस को उसमें मत गिने, क्योंकि उस काउंटिंग में डिफेंस और डिफेंस प्रोडक्शन नहीं है। मशरिक़ वस्ता में कशीदगियां खत्म हो रही हैं। कशीदगी के खात्मे के बाद तुर्की और यूएई की दोस्ती मजबूत से मजबूत तर हो रही है। इसके दोनों मुल्कों की क्या मुआशी वफ़ायद सामने आ रहे हैं, पाकिस्तान इससे कैसे मुस्तफीद हो सकता है, इस रिपोर्ट में जानिए। मुत्तहिदा अरब इमारात और तुर्की के ताल्लुकात में कशीदगी खत्म हो चुकी है। इस दोस्ती के फवायद दोनों तरफ अरबों रुपए की सरमायाकारी की सूरत में सामने आ रहे हैं। यूएई ने तुर्की में 10 अरब डॉलर की सरमायाकारी का ऐलान किया है। पाकिस्तान के तुर्की और यूएई के साथ तारीखी दोस्ताना ताल्लुकात हैं। दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में बेहतरी और खित्ते में आने वाली तब्दीलियों में पाकिस्तान के लिए कई इम्कानात मौजूद हैं। इस ज़मीन में इक़दामात भी किए जा रहे हैं। We are doing massive reforms in the different ministries and regulators. So this is directly linked with the investment opportunities with different countries, including UAE and Turkey as well. The Prime Minister is also visiting Turkey in next few months, hopefully in May. मुख्तलिफ कंपनियों की सूरत में तुर्की की पाकिस्तान में सरमायाकारी मौजूद है, ताहम दोनों मुल्कों में तिजारत का हुजूम सलाहियत के मुकाबले में कम है। यूएई के साथ भी सरमायाकारी के हवाले से राब्ते जारी हैं। As far as the UAE is concerned, our relationship is much better than now, and we are in collaboration with many UAE-based investors. Prime Minister is also visiting UAE in the month of March.
سعودی عرب بھی آج کل اہم تبدیلیوں کا مرکز ہے. پاکستان ان تبدیلیوں کا سرمایہ کاری کے حوالے سے بھرپور فائدہ اٹھا سکتا ہے. In the region, we are also closely working with the Saudis as well, and we are expecting FDI in 2022 from Saudi as well. مشرق وسطی میں کشیدگی کم ہو رہی ہے. خطے کے ملکوں کے تعلقات بہتر سے بہتر ہو رہے ہیں. ان تبدیلیوں میں پاکستان کے لیے کئی امکانات موجود ہیں. صالحہ ریاض، آج نیوز.